Hello everyone, welcome back. So we were in APP. Now today we will learn a new topic. Before that, let me see whether there is any line item which is due. There is no such line item. Now what I will do, I will explain you the content later. First let me post few of the invoices. Correct? Few of the due, overdue and not due invoices. Fine. So let's post few of these invoices. Let's keep it 25th, 1100, 4004. Before that, let me do one thing. Come to OBBA 8 and let me create one terms of payment as ZE01 posting date, and when the invoice will be due, it will, instead of getting it due immediately, I am giving 1 day option. So any invoice will be which we will post, it will be due in 1 day. Okay, so I have kept this in order to explain you all few of the things. And the same, I have to make the necessary changes in vendor master data. Fine. From 0001, I will make it as ZE01 and just press OK. Fine. Now let me post few invoices. So 1100, just press enter, press enter. Let me check whether it has triggered ZE01. Fine. Can you see the baseline date is 25/10/2024? Correct? If I have chosen 0001, then due was on the same day itself. But because I have chosen 1 day as due date, so now it will be due on 26/10/2024. But still today is 28, so it is already overdue for me. So that's okay, completely fine. Post. Simultaneously, I will post few of the invoices. 20, let's keep it as 26 now. 1200, press enter, press enter, simulate and post. 7001, keep it as 27/10/2024. This time let it be 1400, 1400, press enter and simulate and save. Last, let me post on today's date itself. Keep it as 1500, 1500 and just press enter and just save. Now come to vendor line item /n FBL1N and see. So it's very much pretty sure that the one which I have posted dated 25th and 26th, definitely considering 1 day as a due date, it will be overdue. And on 27th it is due today because मैंने एक दिन का टाइम पीरियड दिया था, राइट? और जो आज की डेट का है वो डेफिनेटली वो अभी तक ड्यू हुआ नहीं है, वो कब होगा? नेक्स्ट डे, दैट इज 29। ठीक है, क्लियर है? अब एक बार हम क्या करते हैं, चलो एपीपी रन करते हैं। F110 करो आप। ठीक है, वी विल रन इट ऑन टूडेज डेट। ठीक है, कीप इट एज ZE89, एंटर
parameter come as ZE89, T next payment date as 29, keep it as 29, ठीक है, and come to additional log, due date, payment line 7001. Even in the parameter I have to write 7001. Now control S. Done. Come to status and just run the proposal. Start immediately. Start. Enter and come to proposal. Now it has selected 3700. Let's see. 1100, 1200 and 1400. So that means 1100, 1200, 1400. Sure, we all very well know that it trigger all the due and the due and overdue invoices. So considering that, definitely इसको 1100, 1200, 1400 ही ट्रिगर करना था. ये तो हम अब तक समझ चुके हैं. अब आप एक चीज देखो कि क्या ये 1500 भी ट्रिगर करेगा क्या. 1500 is what? It is not due. So still will APP can run over undue item or undue invoices, or can APP trigger not due invoices? Let's check it out. Now what we will do, we will come back and we will delete this proposal. Now come to parameter and instead of 28, let's check it out. It is anyway, it will get due on 29. Fine. So what we will do, if I write here as 30th, let me check it out. So what does, and just press Ctrl S and come to status. Now proposal, just run proposal, and this time it has selected 1500. Though I am running it on today's date, and I have mentioned his document entered up to 28. Still, it has triggered the invoice which is not due. तो मुझे आप लोगों को यही समझाना था. चलो मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. इसको डिलीट करते हैं. ठीक है, इसको एक बार डिलीट करते हैं. अब मैं आप लोगों को एक टॉपिक समझा रही हूँ, which is what do we mean by next payment? This one, next payment date. See, next payment date का भी एक रोल है. क्या है ये समझते हैं. ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर मैं यही प्रपोजल जो अभी मैंने ट्रांजैक्शन पोस्टिंग की है, अगर मैं इसी को कंसीडर करती हूं, तो आप देखो तो आप ये देखो, ये जो जब मैंने इनिशियली रन किया था तो डेफिनेटली इसने 1100, 1200, 1400 ट्रिगर किया था, कंसिडरिंग दिस इज नॉट ड्यू आइटम. करेक्ट. एंड मैंने उस वक्त क्या डाला था, अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने नेक्स्ट पेमेंट डेट डाला था 29/10/2024 इसमें. ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने 38/10/2024 एंटर किया, इसने इसको भी ट्रिगर कर लिया. अब आप बोलोगे डेफिनेटली ट्रिगर करेगा बिकॉज ये तो ऑलरेडी 29 को ड्यू हो जाना है. तो जब अगर हम 38 करेंगे तो 38 तो मैंने नेक्स्ट पेमेंट डेट डाला था ना. 38 को तो मैंने रन तो किया था 28 को ही. तो 28 को रन करने के हिसाब से जो जो ड्यू और ओवर ड्यू होने थे
वो इसने ट्रिगर कर लिया, करेक्ट। अगर मैं यहाँ पे 38 डालती हूँ तो ये तो नेक्स्ट पेमेंट डेट है। इसका मतलब है कि मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि अब एसएपी को नेक्स्ट कब रन करना है, एपीपी के लिए एपीपी रन करना है 38 तारीख को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाला है डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू आप 28/10/2024 तक ही लेना। स्टिल इसने क्यों पिक किया फिर, जबकि ये 29/10/2024, जबकि ये ड्यू होना है 29/10 को, और हम नेक्स्ट पेमेंट डेट हम रन करेंगे 38/10 को। स्टिल इसने इसको ट्रिगर कर लिया, क्यों? बिकॉज आप एक चीज समझने की कोशिश करो कि सपोज अगर हमारे बहुत सारे इनवॉइसेस है, एक है 21/10/2024, ठीक है, एक है 24/10/2024, एक है 26/10/2024, एक है 28/10/2024, 29/10/2024, 38/10/2024, 31/10/2024। I'm just giving an example. सपोज बहुत सारे इन्वॉइसेस है ना। हमने एक इन्वॉइस क्या किया, आज की डेट पे रन किया, विच इज वॉट 28/10/2024। तो डेफिनेटली 28/10/2024 रन करेंगे तो जितने भी ड्यू और ओवर ड्यू इन्वॉइस है, आई एम जस्ट टेकिंग, ये सभी ओवर ड्यू है। से फॉर एग्जाम्पल ये सब ओवर ड्यू है, सब ओवर ड्यू है ना। तो सब ओवर ड्यू है, लेकिन मैंने 28 को रन किया, तो 28 को अगर रन करती ना, तो ये डेफिनेटली सिर्फ ये 4 इनवॉइसेस पिक करते, वो तो फॉर श्योर है ना। और अगर सपोज हमारा नेक्स्ट पेमेंट डेट, अगर हमने से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट डेट अगर 29 डाला होता ना, 29 डाला होता अगर, तो जब हम नेक्स्ट रन करते ना, तो तभी ये मतलब 28 को रन कर रहे हैं, से फॉर यहाँ पे 28 को रन कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर हमने 29 लिखा होता ना, तो ये वो सब इनवॉइसेस पिक करता जो भी 29/10/2024, दैट मीन्स नेक्स्ट पेमेंट डेट -1 क्या होता है, नेक्स्ट पेमेंट डेट इज 29, -1 इज व्हाट 28। जितने भी इनवॉइसेस होंगे ना वो सब इसको पिक करेगा। तो उस हिसाब से 29/10 -1 इज 28/10, तो ये सब इनवॉइसेस पिक करेगा, चाहे वो हमारा वैसे तो ड्यू और ओवर ड्यू ही करना चाहिए, करेक्ट। लेकिन अभी क्या हुआ, सपोज अगर अगर आप ये लो कि अगर मैं 29 नहीं लिखती, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेमेंट डेट 38 डालती, से फॉर एग्जाम्पल, अब ये ड्यू होना है कल के दिन, लेकिन मैंने तो सिस्टम में इंस्ट्रक्शन दिया है कि अब नेक्स्ट पेमेंट कब रन होगा 38। तो अगर मैं कोई चीज 38 को अब नेक्स्ट रन करूंगी, तो इस इनवॉइस का क्या होगा, इस इनवॉइस को कब कब, क्योंकि वेंडर तो पेमेंट मांगेगा ना, वेंडर थोड़ी रुकेगा हमारे लिए, वेंडर के अकॉर्डिंग तो इसके अमाउंट ऑलरेडी ड्यू हो जाएगा 29 को। तो अगर हम 38 को रन करेंगे तो वो वाले इनवॉइस क्या होंगे जो ऑलरेडी ड्यू हो चुके, क्योंकि अब रन तो 38 को कर रहे हैं हम। तो इसलिए आप समझो कि नेक्स्ट पेमेंट डेट का क्या मतलब होता है, कि वो उन सब इनवॉइसेस को कैलकुलेट करेगा, चाहे चाहे वो हमारा ड्यू हो या ओवरड्यू हो, या अगर वो अनड्यू भी होता ना, तो भी अगर हमारा नेक्स्ट पेमेंट डेट 38/10/2024 है, तो 38 -1 क्या होता है, नेक्स्ट पेमेंट डेट -1 इज 29। तो इसलिए जब अभी हमने क्या यहाँ पे 38 लिखा था ना, तो इट हैज इवन ट्रिगर्ड दैट इनवॉइस विच इज अनड्यू फॉर टुडे, बट इट विल बी ड्यू नेक्स्ट डे, लेकिन कल ड्यू होगा, लेकिन हम नेक्स्ट पेमेंट हम अपना पेमेंट नेक्स्ट कब रन कर रहे हैं, हम रन करेंगे कब, हम रन करेंगे 38 को। इसलिए ये जो
कॉन्सेप्ट है ना नेक्स्ट पेमेंट डेट -1 का, वो ये है कि जितने भी हमारे इनवॉइसेस होंगे, चाहे वो ड्यू हो या ओवर ड्यू हो या नॉट ड्यू हो, वो अगर इंक्लूड तब हो जाएगा अगर हम नेक्स्ट पेमेंट डेट जो भी नेट ड्यू डेट है +1 अगर हम एंटर कर देते हैं। अगर आप से फॉर एग्जाम्पल और एक चीज है कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोग को बता रही हूँ, अगर सपोज आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू, सपोज अगर आप यहाँ पे 29 लिख देते ना, सपोज मैं यहाँ लिख देती हूँ डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू 29/10/2024, हाँ, और अगर मैं यहाँ पे लिख दूं नेक्स्ट पेमेंट डेट एज 29/10/2024, तो भी देखो क्या होता है, जस्ट कंट्रोल S करो, तो उस वक्त क्या होता है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, ये नेक्स्ट पेमेंट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये ऐसे ही हम नहीं लिखते हैं, इसका डेफिनेटली एक मतलब होता है, और वही मतलब मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप ये मान के चलो एडिट कोई प्रपोजल है नहीं है, अगर मैं यहाँ पे 38 लिखी हूँ तो ये उतने तक के इन्वॉइसेस लेंगे जो भी नेक्स्ट पेमेंट डेट 38 - 1 मीन्स 29, तो 29 डेट तक जितने भी इन्वॉइसेस है वो उसको कंसिडर करेगा। ठीक है, FBL1N। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज 29 लिखती हूँ से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंटर अप टू 29, और यहाँ पे भी मैं 29 लिखती हूँ ना, तो आप लोगों को डेफिनेटली, आप लोग बिकॉज नहीं हो, आप लोगों को लगेगा अच्छा मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स एंटर लिख दिया 29, दैट मीन्स इट विल ट्रिगर द डॉक्यूमेंट्स जो भी पोस्टेड है टिल 29, मतलब ये 29 जो नेट ड्यू डेट है 29, नो, it will trigger next payment date -1, that means 28 ही only, दो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है डॉक्यूमेंट्स एंटर्ड अप टू 29/10/2024, that means कि अगर सपोज मैं अगर ऐसे ले लेती हूँ, लेट मी इवन पोस्ट इन फ्यूचर डेट, ठीक है, अगर मैं 29/10/2024 में पोस्ट कर रही हूँ, तो दैट मीन्स कोई भी इनवॉइस है जो पोस्ट हुआ है 29 को, ठीक है, पोस्ट हो गया। अब अगर आप वापस से रिफ्रेश करो, अब आप वापस से रिफ्रेश करो तो 29 को अगर मैंने कोई पोस्टिंग किया, डेफिनेटली ड्यू नेक्स्ट डे होना है 38, तो अगर मैं यहाँ पे 29 लिखती हूँ डॉक्यूमेंट्स एंटर्ड अप टू 29, दैट मीन्स डेफिनेटली ये इसको कंसीडर करना चाहिए क्योंकि मैंने ये डॉक्यूमेंट 29 को पोस्ट किया है फ्यूचर डे, बट ऐसा नहीं होता है, इट रीड इवन द नेक्स्ट पेमेंट डेट इंस्ट्रक्शन, एंड अगर मैंने नेक्स्ट पेमेंट डेट में 29/10 लिखा है ना, तो ये डेफिनेटली -1 करके जितने डॉक्यूमेंट्स है उसी को कवर करेगा, विच इज व्हाट 28, तो इट विल कवर व्हाट ऑल डॉक्यूमेंट्स, दिस डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट, दिस डॉक्यूमेंट एंड ऑल्सो दिस डॉक्यूमेंट, बिकॉज मैंने यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया है 29 - 1 विच इज व्हाट डॉक्यूमेंट पोस्टेड टिल इवन जो हमारा 28 तक पोस्टिंग हुई है, जो दो ये ड्यू नहीं है, कैन यू सी इट, ओके, सॉरी, दो इट इज ड्यू, करेक्ट, लेकिन अगर मैंने क्या बोला था, अगर 29 है तो ये सिर्फ यहीं तक का लेगा। चलो एक बार चेक करके देखते हैं, है ना, कंट्रोल S करो, अगर हम 29 लेते हैं तो इसको सिर्फ 28 तक का लेना है, तो व्हाट वी विल डू, कम टू प्रपोजल, स्टार्ट इमीडिएटली, ये just press enter, can you come to proposal, let's see, ये लिया 1100 1200 1400, that means it has picked only 1100 1200 1400, why, because 29 जो next payment date था -1 which is what 28, तो 28 तक कौन कौन से ड्यू थे, ये थे, ये थे, ये थे, करेक्ट, तो इसने इन तीनों को पिक किया, ठीक है, लेकिन अगर सेम
जबकि मैंने यहाँ पे लिखा था क्या, डॉक्यूमेंट्स एंटर्ड अप टू 29। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना कि जब मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है कि डॉक्यूमेंट्स एंटर्ड अप टू 29, तब तो उस हिसाब से इसको ये भी लेना था और ये भी लेना था, क्योंकि ये 28 को एंटर्ड हुआ है और ये 29 को एंटर्ड हुआ है। नहीं, ये हमेशा ये भी देखेगा कि आपने नेक्स्ट पेमेंट डेट क्या डाला है, और अगर आपने नेक्स्ट पेमेंट डेट सपोज जो भी डाला हो उसका -1 करोगे, फिर उतने तक के जितने भी ड्यू है ना वो उसको ट्रिगर करेगा। डॉक्यूमेंट्स एंटर्ड अप टू here, posting date and document date, you will see here, and when it comes to next payment date, it trigger the due date। ये due date को देखता है कि due date कितने तक का मुझे लेना है। अगर यही सेम, अगर मैं 38 लेती हूं तो अब आप देखना क्या होता है, एडिट, कम टू प्रपोजल, डिलीट इट, ठीक है। एंड नाउ कम टू हियर, आप ये 29 ही रहने दो एंड जस्ट कम टू हियर एंड जस्ट राइट डाउन एज 30। नाउ लेट्स सी क्या होता है। कंट्रोल एस करो, कम टू स्टेटस, प्रपोजल, रन द प्रपोजल and just press enter and now come to proposal and double click on it। now अब आप देख रहे हो, अब मैंने डॉक्यूमेंट एंटर अप टू 29 डाला था, लेकिन नेक्स्ट पेमेंट डेट मैंने 38 डाला था। 38 -1 इज व्हाट, 29। तो ये वो सब डॉक्यूमेंट्स लेगा जो भी हमारा ड्यू, ओवर ड्यू और नॉट ड्यू है टिल 29 तक। सो ऑलवेज रिमेंबर, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एंटर्ड अप टू, आप क्या चीज देखते हो, इसमें आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि आप जो भी पोस्टिंग, वेदर इट इज पोस्टिंग डेट या आपका डॉक्यूमेंट डेट, जो भी आप ले रहे हो टर्म्स ऑफ पेमेंट, वो उस इस डेट का मतलब होता है वो डॉक्यूमेंट या पोस्टिंग डेट, और इस डेट का मतलब होता है ड्यू डेट कि कितने तक के डॉक्यूमेंट्स को आपको लेने हैं। अगर मैंने 38 डाला, -1 कर दो, तो वो उतने तक के जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो सब कुछ कैरी कर लेगा, कंसिडर कर लेगा। अगर सपोज मैं है ना, ये इंस्ट्रक्शन है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, सपोज ये ओवर ड्यू है ना, लेकिन मुझे ये इंस्ट्रक्शन है कि आज के दिन इसको ट्रिगर नहीं करना है। इफ एट ऑल मेरा ये इंस्ट्रक्शन है तो मैं क्या करूंगी, लेट मी सी, इफ एट ऑल दिस इज द इंस्ट्रक्शन, तो कम टू प्रपोजल, डिलीट, डिलीट। देखो अगर ऐसा इंस्ट्रक्शन है तो आई डोंट थिंक सो, बिकॉज 28 है, तो अगर मैं नेक्स्ट पेमेंट डेट एनीवेज मुझे 29 डालना है एंड डॉक्यूमेंट्स एंटर्ड अप टू भी अगर मैं 28 ही करूंगी, स्टिल इट विल टेक 29 -1 ओनली विच इज 28, ठीक है। लेकिन सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारा वैसे ड्यू है ना, और अगर हम इसको इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं ना, 29 को अगर हम इंक्लूड नहीं करना चाहते हैं, तो एनीवेज वी कैन वी कीप इट एज 28 here? Definitely no, because next payment date has to be okay। हम 38 नहीं डालते और अगर हम 28 डाल मेंशन कर देते हैं तो स्टिल इट विल पिक। हाँ, मैंने आप लोग को दिखाया ही था ना कि अगर सपोज ये सेम कॉन्सेप्ट आप समझो जो मैंने समझाया है, डू नॉट गेट कंफ्यूज और एल्स आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इतना आपको समझ में आ गया कि नेक्स्ट पेमेंट डेट क्या होता है और इसका क्या रोल है, दैट इज सफिशिएंट। अगर सपोज कभी कुछ हो गया कि हमें नहीं इंक्लूड करना है, तो मैंने आप लोग को बताया भी है कैसे हम फ्री सिलेक्शन टैब का यूज कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं द लाइन आइटम या द प्रपोजल लेबल, ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट डेट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ, अब है ना मुझे आप लोगों को और एक चीज समझाना है विच इज व्हाट, ग्रेस डेज, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको तो हम करते हैं, प्रपोजल है ही नहीं कुछ, अब है ना ग्रेस पीरियड को इंक्लूड करते। तो ग्रेस पीरियड कैसे इंक्लूड होगा, FP-ZP में आओ एंड कम टू ऑल कंपनी कोड, ठीक है, एंड कम टू योर कंपनी कोड ZE89, ठीक है, and here and can you see here tolerance days for payable। इसका मतलब है कि आप कितने दिन वेंडर आपको अलाउ कर रहा है एक्स्ट्रा डेज अपार्ट फ्रॉम ड्यू डेट, कि आपको और कितने दिन का लिवरेज मिल सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इनवॉइस में पोस्ट कर रही हूँ 21st को,
ठीक है, 21 10/2024, ठीक है। ये 2 दिन में ड्यू होना है, दैट इज 23rd को ये ड्यू हो, एक दिन में ड्यू होना है, सॉरी, इफ आई एम यूजिंग ZE01 दैट मीन्स ये एक दिन में ड्यू हो जाएगा, दैट मीन्स ये ड्यू हो जाएगा हमारा इस दिन, ठीक है। लेकिन साथ में मुझे और 2 दिन का ग्रेस डेज मिला है, मतलब मुझे और 2 दिन एक्स्ट्रा दिया गया है बाय द वेंडर टू मेक द पेमेंट, दैट मीन्स 22 है, so it will be what 22 23, that means the next it will be due on 24/10/2024, राइट। मतलब मैं इस दिन तक पेमेंट कर सकती हूँ, अगर मैं इसके बाद मिस कर देती हूँ तो मेरे इनवॉइसेस ओवर ड्यू होंगे, क्लियर है। तो चलो यही चीज देखते हैं यहाँ पे। अब आप ग्रेस डेज देख लो। अब डेफिनेटली ये कंफ्यूजन आना भी चाहिए कि जरूरी तो नहीं है ना कि हर वेंडर से रिलेटेड हमारा सेम ही ग्रेस पीरियड हो। देखो जरूरी नहीं है, ऑफकोर्स कोई के 7 दिन हो, कोई के 6 दिन हो, लेकिन एसएपी में क्या फॉलो होता है, एसएपी में एक कॉमन कॉमन ग्रेस डेज ही फॉलो होता है। अगर 2 दिन या 5 दिन या 7 दिन, और वो सब में एप्लीकेबल होता है। ये डिसाइड किया जाता है विद द परचेज डिपार्टमेंट एंड द वेंडर, परचेज डिपार्टमेंट ऑफ द क्लाइंट साइड, और फिर उन लोग एक कॉमन ग्रेस पीरियड कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में चलो मैं 2 ले लेती हूँ, सॉरी इट्स नॉट सेंडिंग हियर टॉलरेंस डेज, एंड 2 लेके आई जस्ट डू Ctrl+S एंड जस्ट सेव इट, ठीक है। सेव करने के बाद अगर मैं वापस से, अब मैं एक बार इसको चेक करती हूँ जो 26 27 28 है, उस हिसाब से अब ये ग्रेस, ये जो ऑलरेडी ओवरड्यू है, अब मैंने 2 दिन का ग्रेस पीरियड दे दिया, तो क्या अभी भी ये सब ओवरड्यू रहेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं रहना चाहिए। 26 है तो 2 दिन मीन्स 27 28, ये जरूर आज के दिन ड्यू हो गया है, लेकिन बाकी सब मेरे अकॉर्डिंग नो नॉट ड्यू, राइट, बिकॉज स्टिल इसमें 2 दिन बचा है, लाइक 27 28 29 को ये ड्यू होगा, ये 38 को ड्यू होगा, ये 31st को ड्यू होगा, एंड ये 1 तारीख को ड्यू होगा, राइट। तो दिस 4 लाइन आइटम शुड बी नॉट ड्यू एंड दिस शुड बी ड्यू बिकॉज ये आज के दिन ड्यू है। चलो चेक करते हैं वेदर ये इसको कंसीडर करता है या नहीं, ठीक है। ओके, सो एक काम करते हैं, बिकॉज अगर मैं इसमें ग्रेस डेज, ये सब तो इनवॉइसेस ऑलरेडी पोस्ट हो चुके, करेक्ट। मैंने अभी ग्रेस डेज का चेंज किया है इन व्हाट, इन FBZP, ठीक है। तो अब इसके बाद मैं जो भी इनवॉइसेस पोस्ट करूंगी तो इसका इम्पैक्ट दिखेगा कि वो 2 दिन बाद एज कंसीडर करेगा ग्रेस डेज को। इससे पहले तो जितने इनवॉइसेस पोस्ट कर चुकी हूं मैं, वो डेफिनेटली वो तो पोस्ट हो चुका है। तो हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेमेंट डेट क्लियर हो गया, अब इसका हम है ना, इसका तो पेमेंट कर देते सो दैट कोई कंफ्यूजन हो ना, ठीक है। 6300 document simulate and just post it, ठीक है, हो गया। अब हमें ग्रेस डेज कैसे वर्क करता है चलो देखते हैं। यहाँ पे आप दे दोगे टॉलरेंस डेज फॉर पेबल। नाउ वी विल स्टार्ट पोस्टिंग इनवॉइसेस /NSK02, ठीक है। अब चलो चेक करते हैं, ओके, /NFB60, ठीक है। अब देखते हैं 7001, इनवॉइस डेट 27 का रखते हैं एक, 1000 press enter, simulate and post it। फिर से 7001 26 का रखते हैं। हम डिफरेंट डिफरेंट डेट्स लेते हैं आसपास और देखते हैं कैसे वर्कआउट होता है। 4000 एंड 2000, Ctrl+S। फिर 7001 आज की डेट ले लेते हैं,
ठीक है, अब 1200, 4000, 1200, accumulate and post it. अब एक बार देखते हैं /n FPL1N, एक बार चेक करते हैं कि क्या है, वेदर ये ग्रेस डेज ले रहा है या नहीं ले रहा है। ठीक है, पोस्टिंग डेट को हम ले लेते हैं इधर और नेट ड्यू डेट को इसके वैसे कॉपी। ठीक है, अब आप देखो, जो मैंने 26 को मैंने पोस्टिंग की थी, तो वैसे मैं यूज कर रही हूँ ZE01, मतलब 27 को इसको ड्यू होना था, करेक्ट, 27 को ड्यू होना था, लेकिन 2 डेज का ग्रेस पीरियड था, दैट मीन्स 27, 28 आज के दिन 27th है, ये ड्यू है, and this is not due. That means it is not triggering the grace days only. क्योंकि grace days होता तो अगर 26 की डेट है तो डेफिनेटली ड्यू होना है 27th को। करेक्ट, लेकिन 2 दिन का ग्रेस डेज है तो इसको तो 28 एंड 27, 28 आज की डेट। ओके 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 ओके, लेट मी चेक वन। ओके, तो हम है ना यहाँ पे, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज, एक्चुअली आई मिस्ड इट आउट। सी, बेस्ड ऑन ZE01 डेफिनेटली ये ड्यू है 27th को, 27th वाला हमारा आज के दिन ड्यू होगा क्योंकि आज डेट है 28, एंड जो 28 को आज के दिन हमने पोस्टिंग की है वो कल ड्यू होगा, दैट इज नॉट ड्यू। नाउ इन द बैकग्राउंड इट ऑलरेडी चेक, एसएपी ऑलरेडी ग्रेस डेज को कैलकुलेट करेगा, वो यहाँ पे आपको शो नहीं करता है, वो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करेगा और आपको ये नहीं शो करेगा कि ये 28 है तो अभी और 2 दिन का ग्रेस डेज है, दैट मीन्स ये ड्यू नहीं हुआ है, ये 27th को ड्यू होना था लेकिन और 2 दिन का ग्रेस डेज है, विच इज व्हाट 28 एंड 29, ये भी ड्यू नहीं है एंड ये भी ड्यू नहीं है। एक काम करते हैं और एक पोस्टिंग कर लेते हैं FB60 में, हम 7001 एक 25th डेट का कर लेते हैं। ठीक है, 1200, 4004, 1200 एंड जस्ट पोस्ट इट। और एक हम कर लेते हैं 24 का। ठीक है, ये मैं इसलिए इतना कर रही हूँ सो दैट आप लोगों को डिफरेंस दिखा सकूं। ओके, तो ये सब पोस्टिंग है ना, 26, 25 जो भी मैंने पोस्टिंग किया है, 24, 20, मतलब पोस्टिंग डेट से आप देखो तो ये नेक्स्ट डे ड्यू होना है, करेक्ट, नेक्स्ट डे ड्यू होना है, लेकिन क्या एपीपी ये अमाउंट और ये, क्योंकि अगर मैं एपीपी रन करती हूँ तो एपीपी को रन करने के हिसाब से इट शुड कंसीडर this also, and if I take next payment date as 38, say for example, तो this also and this also करेक्ट लेना चाहिए, लेकिन आप देखना ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ग्रेस डेज को कवर करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा और वो फिर वही इनवॉइसेस कैरी फॉरवर्ड करेगा या प्रोसेस करेगा जो इवन ग्रेस डेज को भी सरपास कर चुका हो। चलो देखते हैं, बट ये आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा,
कि ये एडिशनल जो भी हमने डेज ग्रेस डेज दिया है वो फिर एडिशनली यहाँ पे आपको शो नहीं करेगा। ये जो हमारा ड्यू डेट सिंबल है ना, ये तो उसी के हिसाब से जो हमारी टर्म्स ऑफ पेमेंट है। ग्रेस डेज एसएपी बैकग्राउंड में चेक करता है, ठीक है। कैसे, चलो अब हम क्या करते हैं, एपीपी रन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स रन एपीपी दिस टाइम। पैरामीटर, चलो मैं इसको 38 ही रहने देती हूँ, है ना। और चलो देखते हैं कैसे क्या होता है। Just press enter, keep pressing enter and come to proposal. 4300 क्या क्या लिया है, चलो देखते हैं। इसने कंसीडर किया है 2000, 1200 एंड 1100। लेट्स सी क्या क्या किया है। इसने किया है 2000, दैट मीन्स इसने इसको कंसीडर किया है। तो 27 नेट ड्यू डेट था, 2 दिन ग्रेस पीरियड है। तो 2 दिन ग्रेस पीरियड मीन्स 27 एंड 28। तो आज के दिन इसको इंक्लूड करना था, इसने किया, करेक्ट है। इसने 1000 इंक्लूड नहीं किया क्योंकि नेट ड्यू डेट 28 था। 2 दिन का और ग्रेस पीरियड है, दैट मीन्स 29 और 28 और 29। दैट मीन्स अगर मैं इसको कल रन करूंगी तो ये 1000 इंक्लूड होगा, राइट। और क्या है 1200, चलो 1200। इसे 3000 नहीं किया क्योंकि एक तो 29 है। अगर आप देखो तो मैंने 38 डाला था, तो 38 माइनस 1 क्या था, 29। इसको ये पिक करना था, लेकिन इसे पिक क्यों नहीं किया, क्योंकि इसने ग्रेस डेज को इंक्लूड किया। दैट मीन्स 2 दिन और मुझे मिला। तो 29 ड्यू डेट था, तो 29 प्लस 38, तो 38 को ये ड्यू होना है। एक है 26 ड्यू डेट, तो 26 तो था ही, प्लस मुझे और 2 दिन का ग्रेस डेज मिला, तो 26, 27 और आज क्या है 28 है। तो उस हिसाब से ये हमारा क्या हो गया, ओवर ड्यू हो गया। लाइकवाइज 25, तो करेक्ट है ना। तो ये हमेशा याद रखना, ग्रेस डेज क्या होता है, ग्रेस डेज एससीपी अलग से शो नहीं करता। आपको ये जो ड्यू डेट का सिंबल है ये शो होगा एज पर द टर्म्स ऑफ पेमेंट का नेट ड्यू डेट, लेकिन वो बैकग्राउंड में चेक करता है। और चेक करने के बाद जो भी एपीपी आप रन करोगे वो सिर्फ उन्हीं इनवॉइसेस को लेगा जो ग्रेस डेज को सरपास करेगा। वन मोर थिंग ऑल्सो यू ऑल रिमेंबर, हमेशा ग्रेस डेज को कैलकुलेट करने में मिस्टेक होता है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सपोज 28 है तो स्टूडेंट सोचते हैं 28 है दैट मीन्स 2 दिन और मिल गया, 29, 30। नो, 28 इज द ड्यू डेट। अब यहां से ग्रेस डेज 28 एंड 29, 29 इज सेकेंड डे, तो कल इसलिए ड्यू हो जाएगा। अब आप 38 को अगर पे करते हो ना तो वो ओवर ड्यू कहलाएगा। सिमिलरली 27, तो 27 आज एक दिन हो गया, कल 28, कल दूसरा दिन होगा। और आज 28 है, आज की तारीख क्या है, 28 है, तो आज के दिन एक 27 था और एक 28 है, तो ये आज के दिन हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू हो जाएगा। आज के दिन ड्यू हो गया, और अगर मैं उसके नेक्स्ट डे पे करती हूँ तो वो ओवर ड्यू हो जाएगा। इस सिंबल में मत जाना, ये सिंबल आपको नॉर्मल नेट ड्यू डेट बताता है बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ पेमेंट, लेकिन ग्रेस डेज के बेसिस पे ये सिंबल नहीं होता है। ग्रेस डेज बस ये बैकग्राउंड में चेक करता है। इसलिए अभी ये 2000 क्यों इंक्लूड हुआ, क्योंकि मैं आज के दिन पेमेंट कर रही हूँ, और आज के दिन के हिसाब से 27 फर्स्ट डे, 28 सेकेंड डे, 29 फर्स्ट डे, 38 सेकेंड डे। तो 38 अभी तक हुआ नहीं, इसलिए ये हमारा कंसिडर नहीं किया। 26 फर्स्ट डे, 27 सेकेंड डे, आज 28 है तो इसलिए इसने इसको कवर कर लिया। 25 फर्स्ट डे, 26 सेकेंड डे, आज 28 है इसलिए इसने कवर कर लिया। क्लियर है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, ऑफन पीपल गेट कंफ्यूज कि ग्रेस डेज कब से कैलकुलेट करना है। ग्रेस डेज आप उसी दिन से कैलकुलेट करोगे जिस दिन से नेट ड्यू डेट है। द नेट ड्यू डेट विल बी द 1 डे एंड देन कैलकुलेट। अगर आपका 2 दिन का ग्रेस है या 5 दिन का ग्रेस है तो आप वैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। क्लियर है। सो दैट्स इट। हमें पता चल ही गया है कि इसने क्या क्या चीज कवर कर लिया। हमें यही देखना था। So we will not make the payment. Let's not make the payment. Definitely I will get the error if I don't delete it. So let me delete it once. ठीक है। So this is all about today's class. Today we have completed grace days क्या होता है and next payment date क्या होता है। ठीक है। Definitely I have repeated
again and again the same thing, so that you all do not get confused, because often people get confused between this. And मैंने इसको इसलिए भी रिपीट किया because even इंटरव्यू में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं कि what do you mean by next payment date or what do you mean by next run date. तो next payment date और run date का मतलब होता है कि APP only will consider those invoices जो हमारे ड्यू और ओवर ड्यू है टिल नेक्स्ट पेमेंट डेट -1। अगर उसमें नेक्स्ट पेमेंट डेट -1 में नॉट ड्यू भी आ गया ना, वैसे तो एपीपी रियल टाइम में नहीं कंसीडर, बिकॉज हम एपीपी रन ही इसलिए करते हैं कि जो हमारे ड्यू और ओवर ड्यू इन्वॉइसेस है। लेकिन -1 में अगर वो नॉट ड्यू भी आ गया ना, तो भी वो उस नॉट ड्यू को भी कंसीडर करता है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था। जो 29th को होना था ड्यू, लेकिन मैंने 38 नेक्स्ट पेमेंट डेट डाला था, तो उसने किसको कंसीडर कर दिया, इवन उस इनवॉइस को भी जो हमारा नॉट ड्यू आज के दिन, आज 28 के दिन था। ठीक है, अगर सपोज और एक मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ बिफोर वाइंडिंग अप, कि सपोज आपके दो इनवॉइस है। ठीक है, एक इनवॉइस है टेक फॉर एग्जाम्पल 11/10/2024। ठीक है, and the second invoice is say 16/10। I'm just giving an example। ठीक है, आज की डेट, सपोज करेंट डेट इज व्हाट, आई एम जस्ट गिविंग करेंट डेट। ठीक है, करेंट डेट इज से फॉर एग्जाम्पल इट्स 12/10/2024। ओके, एंड हम अगर नेक्स्ट पेमेंट डेट, अगर हम say for example if we keep as next payment date as, and next payment date is say for example 22/10/2024। ठीक है, so in case if this is the scenario and you've been asked कि how many invoices will be selected by APP, so what you will reply, definitely there is no question, you have to just see next payment date. Next payment date is what, 22 minus 1 is what, 22 minus 1 is 21. So all the invoices which comes under this till 21/10/2024 will be covered. So 11th also comes under 21/10/2024, it is prior to 21/10/2024, and 16 also is prior to that 2024 21/10, and even if there is any invoice dated this will also be covered, correct? So agar suppose if there is also third invoice, I say if there is third invoice and dated it is 21/10/2024, and you are given this scenario that there are three invoices, this, your current date is say for example 12/10, this is in the future date। okay, I'm just giving hypothetical case। ठीक है, और नेक्स्ट पेमेंट डेट अगर आप मेंशन करते हो 22/10/2024, तो आपके कितने इनवॉइसेस कवर होंगे, एक या दो या तीन? तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, सिंपल। 22nd is next payment date, we have to -1 21, तो 21 तक के जितने इनवॉइसेस ड्यू और ओवर ड्यू होंगे वो सब कवर हो जाएंगे। तो यू विल रिप्लाई ऑल दिस थ्री। ठीक है, क्योंकि मेनली ड्यू और ओवर ड्यू इनवॉइसेस ही होंगे, आप डेफिनेटली यू विल ओनली मेक पेमेंट ऑफ दोज इनवॉइस ना, कोई ड्यू हुआ ही नहीं है तो आप क्यों पेमेंट करोगे, है ना? या और एक ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि से फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे इनवॉइसेस है ना, 11 16 21 12 22, है ना? देयर आर मेनी सच इनवॉइसेस, ये मैं डिलीट कर देती हूँ। 25/10/2024 और आज की डेट 10/2024। ठीक है, अब है ना, क्लाइंट जो है ना, क्लाइंट चाहता है कि से फॉर एग्जाम्पल कि आज की डेट अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल
आज की डेट अगर सपोज 11/07/2024 है, और जनरली क्या होता है ना, क्लाइंट हमेशा नेक्स्ट पेमेंट डेट उनका सपोज ऐसे रहता है, आई एम जस्ट गिविंग हाइपोथेटिकल, ठीक है, 11th, 21st और 31st या 30th, डिपेंड कि किस मंथ में है। तो नेक्स्ट पेमेंट डेट अब कब होना है, 21st को होना है, बिकॉज इनका यही क्राइटेरिया, 11th को, 21 को और 31st को इन लोग रन करेंगे। तो उस हिसाब से अगर एक 11th को अगर रन हो रहा है, विच इज 11/10/2024, तो नेक्स्ट जब रन होगा 21/10/2024, दैट मीन्स कि कौन कौन से इनवॉइसेस कवर हो जाएंगे। अगर हम 21st को रन करते हैं तो डेफिनेटली 21st माइनस माइनस क्या 1, तो 28 से पहले जितने इनवॉइसेस होंगे, 28 तक जितने इनवॉइसेस होंगे, ये हाँ बस ये तीनों कवर होगा। लेकिन क्लाइंट चाहता है कि 16th का वो पेमेंट नहीं करे। से फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ये चाहता है कि जो भी इनवॉइस है उसमें 16 नहीं आना चाहिए, ये वाली इनवॉइस नहीं आनी चाहिए। तो फिर उस वक्त क्या करोगे, सिंपल, 16 नहीं आनी चाहिए तो उस वक्त आप क्या करोगे, यू विल कीप द नेक्स्ट पेमेंट डेट एज व्हाट, 13, सिंपल। तो 13 से पहले जितने इनवॉइसेस है वो कवर होंगे, तो 13 से पहले 12 है और 11 है, तो ये कवर हो जाएंगे। 16 नहीं होगा कवर, फिर 16 बाद में कवर होगा, जब आप जो भी नेक्स्ट पेमेंट डेट दोगे उसके बाद। सपोज 21 विल बी द नेक्स्ट पेमेंट डेट। अब इसके बाद सपोज ये कोई कोई एक बीच में ऐसा क्राइटेरिया आ गया था, अब वो क्राइटेरिया वो मीट हो गया, 16 कवर नहीं हुआ, अब नेक्स्ट रन होने वाला है 21st को, तो अब 21st को रन होगा तो अब 16 कवर हो जाएगा। क्लियर है। तो जितने भी मैंने आपको ये सब एग्जाम्पल दिए ना, आप खुद भी ट्राई करना अपनी एंड से, जितने आप ट्राई करोगे ना, देखना आपकी क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा क्लियर और वाइडर होती जाएगी। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।